Namaste and welcome to this exciting new episode of Sathology Debunking Mythology. Sat means truth, Logos means a study or science, Sathology means a science of truth or study of truth. And opposite of that is mythology. Myth is a Sanskrit dhatu which means fake, lie or imagination. Dhatu means a root word on which other words are made. So mythology means a study or science of fake, lie or imagination. The European colonizers, they especially made Vedic scriptures as mythology because they were the the country where they wanted to easily overrun, like they had to overrun North America, South America. With India, they could not defeat militarily, so they had to first weaken the society. So first they invented the term mythology to discredit the Brahman who were the leaders of the society. Now Brahmins are the poorest section of the society, but they are considered the leaders by knowledge. Their job is to train and educate. And they created so many fighters and artisans, all kinds of people they created. So the first was to attack the education system of India. And they created a lot of fictional material against the Shastra. One of the very common thing is do not keep Mahabharata at home. That's what done by the British propaganda, to which some leftist ideologists also participated. So today I have a very, very special guest, and we are going to talk about a very important Shastra in terms of, it's called Vedanga, Upanga. It's not main part of Veda, but it's a corollary to Veda because Veda has a lot of information. So different gurus have expanded one aspect of it. And so we have Kama Shastra, which is a very important topic, or one of the important Shastras which came from Veda. So I have a Dr. Raghavendra Mishra and would like to welcome him. Namaste Raghavendra ji, Dr. Raghavendra Mishra ji. So Dr. Raghavendra Mishra ji is a professor at JNU. He has done a PhD from JNU and his thesis was on Kama Shastra. And before I give the podium to him, I would like to begin with a question. So please debunk the misconceptions about कामा शास्त्र के विरुद्ध जो भी मनोभ्रांताएं हैं उसको पहले समझाइए कि क्या गलत है उधर। और क्योंकि जो शब्द शास्त्र यूज किया गया है इधर, इसका मतलब वो गाइडेंस के लिए है। और कभी भी शास्त्र जो है उसका एक ही पर्पज है, कर्म बंधन से मुक्ति। एंड काम इज ए मच डीपर वर्ड देन लस्ट। लस्ट इज अ वेरी शैलो वर्ड। लस्ट एक जो सी इंग्लिश लैंग्वेज इज ए इनकम्प्लीट लैंग्वेज, भारतीयों को भी पता है, हम सबको पता है। इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वर्ड ट्रांसलेट नहीं हो पाता। जैसे रिलीजन धर्म नहीं है, इसी पे काम तो बहुत सारा चीजें हैं कि काम का अर्थ है कि अपनी इंद्रियों को तृप्ति देना, मतलब खाने को भी काम बोलते हैं ज्यादा खाएंगे तो इट्स ए डीपर वर्ड देन जस्ट लस्ट, है ना। तो प्लीज इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, अपनी थीसिस के बारे में बताइए कि व्हाई डिड यू राइट इट, व्हाट वाज द पर्पस, what inspired you, and why we have to understand in a new way. इसको नए तरीके से समझने की क्या आवश्यकता है। प्लीज फोरम टू यू। ठीक, थैंक यू सो मच सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सत्योलॉजी मंच को और जो लोग भी इसमें सहयोग दे रहे हैं तकनीकी रूप से। जैसा कि मेरा एमफिल जो हुआ, एमफिल का मेरा विषय था कि फिलोसफिकल एंड कल्चरल डायमेंशन ऑफ काम पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ के दार्शनिक एवं सांस्कृतिक आयाम। और उसके बाद मेरा पीएचडी का जो थीसिस है यह है स्पिरिचुअल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ काम शास्त्र। तो जैसा कि आपने यह प्रश्न किया कि काम शास्त्र पर जो अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं, या आपने थीसिस लिखना क्यों प्रारंभ किया, तो भारत में जहां जहां भी, इवन एकेडमिक्स में भी, एनसीईआरटी में भी, या जहां भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और भारत की एक बहुत ही सम्मानित एग्जाम है, नाम लेना यहाँ उचित शायद नहीं है, और वहां पर यह क्वेश्चन आया कि काम पुरुषार्थ को उदाहरण सहित व्याख्यायित कीजिए, और इंग्लिश ट्रांसलेशन नीचे होता है सेक्स। तब मैं अपने प्रोफेसर से, अपने आचार्य लोगों से बात किया कि क्या काम और सेक्स एक ही है।
तो वो लोग बोले नहीं। तो फिर इस पर मैंने उस चीज को छोड़कर पूरा अध्ययन अध्यापन करना शुरू किया और इस पर बहुत सारे डाटा कलेक्शन किया, अध्ययन किया, तो निकल के बहुत सारी चीजें आई जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज का हमारा जो विषय है कि हिस्ट्री ऑफ काम शास्त्र इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, काम शास्त्र का इतिहास, भारतीय ज्ञान परंपरा में काम शास्त्र का इतिहास। तो अब हम बात करते हैं काम को लेकर क्या क्या भ्रांतियां हैं। तो पहली भ्रांति कि काम और सेक्स और संभोग ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। दूसरी चीज कि काम को लेकर भारतीय ज्ञान परंपरा में बहुत ही स्तर पे विचार किए गए हैं, चिंतन मनन हमारे ऋषि मुनि आचार्य द्वारा किए गए हैं, जिसमें से अगर सामान्यतः देखा जाए विशेष रूप से, जैसा कि मैंने एक थियरी भी दिया है, ट्रिपर्टाइट थियरी ऑफ कामा, और यूएस में उसको प्रेजेंट भी किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें हमारे यहाँ काम ब्रह्म की अवधारणा है, काम पुरुषार्थ की अवधारणा है और काम रिपु की अवधारणा है। इस पर कभी हम लोग विस्तृत रूप से चिंतन करेंगे। और एक क्वेश्चन आप लोग और अपने मन में हमेशा रखे होंगे काम सूत्र को लेकर। तो काम सूत्र में केवल और केवल इरोटिका का या सेक्सुअल प्लेजर का या सेक्स पोजीशन का चिंतन नहीं हुआ है। उसमें उसको जब आप पूरा पढ़ेंगे तो काम सूत्र का ही प्रारंभ होता है, धर्मार्थ कामेभ्यो नमः। धर्म, अर्थ और काम को नमस्कार है। धर्मार्थ कामेभ्यो नमः से जो यात्रा प्रारंभ होती है, यह यात्रा समाप्त होती है अस्य शास्त्रज्ञ तत्वज्ञो भवेत जितेंद्रिय, अर्थात इस शास्त्र का जो तत्वज्ञ होता है वह जितेंद्रिय हो जाता है। और आपको अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए, इवन मोक्ष को भी प्राप्त करने के लिए, मोक्ष का भी अनुभव करने के लिए, धार्मिक प्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए, या जो है कि सन्यासी साधु कुछ भी बनने के लिए, प्रोफेसर, आईएएस, टीसीएस, कुछ भी विद्वान, आपको पहले जितेंद्रिय होना पड़ेगा। और अब बात आते हैं कि काम शास्त्र भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए और विशेष रूप से आधुनिक ज्ञान परंपरा के लिए, आधुनिक विश्व समाज के लिए एक औषधि के समान, और जो कि आपकी अनेक प्रकार की जितनी भी शारीरिक और मानसिक बीमारियां हैं, उन सभी बीमारियों का निदान कामशास्त्रीय ग्रंथ परंपरा के माध्यम से आसानी से संभव हो जाता है। और जो एक यह प्रश्न है कि काम सूत्र को लेकर बहुत से विद्वानों ने ट्रांसलेशन किया, काम को उन लोगों ने सेक्स के रूप में ट्रांसलेट किया। तो मैं तो यहाँ तक हमारे यहाँ संभोग को संप्रयोग यज्ञ बोला गया है। संभोग का अपना एक साइंस है, अपना एक उसकी अपनी मेथोडोलॉजी है, उसमें है कि क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, पूरी जीवन पद्धति को व्याख्यायित करता है यह शास्त्र परंपरा। और जिसमें से काम सूत्र में जो कि काम का मीनिंग है, पहली अगर जो लिखते हैं वो कहते हैं आचार्य वात्स्यायन की, श्रोत्रक्ष चक्षु जिह्वा घ्राणा नाम आत्म संयुक्तेना मनसाद तिष्ठिता नाम स्वेषु स्वेषु विशेषवानुकूल्यतः प्रवृत्ति काम। काम को फिर आगे चलकर एक सामान्य स्तर पर एक नायक नायिका, पति पत्नी, एक दाम्पत्य जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए, एक उत्कृष्ट संतति का निर्माण करने के लिए, एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए विवाह पद्धति को लाया जाता है। और जैसा कि श्वेतकेतु ऋषि होते हैं जो उद्दालक ऋषि के पुत्र थे, उन्होंने विवाह संस्कार को और विवाह के विषय में उसको एक मर्यादित और सुसंगठित रूप से पहली बार पूरा ग्रंथन किया और इसको व्याख्यायित किया। इसका उल्लेख हमारे यहाँ मिलता है। और काम सूत्र ही हमारे यहाँ काम शास्त्र का ग्रंथ नहीं है। काम सूत्र से पहले हमारे यहाँ बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए और काम सूत्र के बाद भी ग्रंथ लिखे गए। और काम शास्त्र से संबंधित
वैदिक काल से लेकर 18वीं शताब्दी तक भारत में ग्रंथ लिखे गए, और यह भारत के किसी क्षेत्र विशेष में भी नहीं लिखे गए। जो हमारा अखंड भारत था, अखंड भारत है, और आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे कि सांस्कृतिक दृष्टि से रहे, तो उस अखंड भारत में पूरा लिखा गया। आप देखेंगे कश्मीर के आचार्य होते हैं कोक ऋषि, जो कि कोक शास्त्र लिखते हैं, अच्छा अर्थात रति रहस्यम लिखते हैं। आपके गुजरात में होते हैं कल्याणमल, आचार्य कल्याणमल, वो अनंगरंग लिखते हैं। आपके बिहार में पटना में होते हैं वात्स्यायन, वह जो कि कामसूत्र लिखे हैं। और वात्स्यायन कामसूत्र ही जब लिखते हैं तो उसमें जो है कि हमारी जो ब्रह्मा से लेकर ब्रह्मा जी, इसका इतिहास पर हम आ जाते हैं। ये तो बहुत सारे इसके प्रश्न हैं, गणिकाओं को लेकर प्रश्न हैं, वैश्य समाज को लेकर प्रश्न है, नारी समाज को लेकर प्रश्न है। उन प्रश्नों का हम सामान्यतः जो जैसा कि आप लोग प्रश्न करेंगे उत्तर देंगे, इसका एक मैं आप लोग के सामने बता देता हूं कि आज इस पर चर्चा क्या करेंगे। तो इसमें चर्चा करेंगे हम लोग की काम शास्त्र की आचार एवं ग्रंथ परंपरा, जिसमें काम और काम शास्त्र के विषय में, जैसा कि मैंने अभी संक्षेप में बताया आप लोगों को। फिर काम शास्त्र का उद्भव एवं विकास कैसे होता है भारतीय ज्ञान परंपरा में, काम शास्त्र की प्राचीनता और प्रामाणिकता क्या है, काम शास्त्र की शिक्षा पद्धति क्या थी भारतीय ज्ञान परंपरा में। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में काम शास्त्र पर 100 से अधिक ग्रंथ लिखे गए हैं। 25 ग्रंथ अभी उपलब्ध हैं। काम सूत्र से पुराने बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। काम सूत्र से प्राचीन ग्रंथ भी अभी उपलब्ध होते हैं, जिनका मैंने अध्ययन किया है। और काम सूत्र के बाद भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए जिनका मैंने अध्ययन किया है। तो अभी 25 ग्रंथ कम से कम प्रकाशित उपलब्ध होते हैं, और 100 से अधिक ग्रंथ लिखे गए हैं। कुछ कुछ लोगों के द्वारा, विद्रोहियों के द्वारा जला दिए गए, कुछ ग्रंथ प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन उनका उल्लेख होता है। अब इसमें हम आते हैं कि काम शास्त्र की शिक्षा पद्धति हमारे यहाँ बालक बालिका अर्थात नर नारी सबको दी जाती थी, समान रूप से दी जाती थी। थोड़ा उन लोग को ज्ञान देने की शैली अलग अलग थी, और इवन गुरुकुलों में यह ज्ञान परंपरा दिया जाता था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि काम सूत्र के जो 14वीं शताब्दी के आसपास लगभग इसके जयमंगला टीकाकार होते हैं यशोधर जी के गुरु का नाम इंद्रपाद है, और इंद्रपाद से जब पूरा शिक्षा दीक्षा ले लेते हैं तो इनके गुरु इंद्रपाद बोलते हैं कि आप काम सूत्र पर टीका लिखो। तो वैसे ही फिर आप कश्मीर में जाएंगे, बिहार में फिर आगे चल के जो आचार्य ज्योतिश्वर होते हैं वह ग्रंथ लिखते हैं। कश्मीर के विद्वान फिर आते हैं आपके दामोदर गुप्त जी कुटनी मतम लिखते हैं काशी में बैठकर। साउथ में रति शास्त्र जैसे ग्रंथ लिखे जाते हैं। तो पूरे भारत में इस परंपरा को लेकर फिर तिरुवनंतपुरम में इस पर ग्रंथ लिखा जाता है। तो यह ग्रंथ परंपरा इसलिए पूरी समृद्ध हुई क्योंकि इसका प्रॉपर अध्ययन अध्यापन मर्यादित और संयमित रूप से होता था। अब इसमें फिर आते हैं कि अनुबंध चतुष्टय एवं काम शास्त्र का प्रयोजन, इस पर चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे कि भारतीय ग्रंथ परंपरा में काम शास्त्र का स्थान। जैसे भारतीय शास्त्र परंपरा को, ग्रंथ परंपरा को परा अपरा जैसा कि मुंडकोपनिषद है उस रूप में विभाजित किया जाता है, लेकिन पुरुषार्थ के माध्यम से भी शास्त्र परंपरा को विभाजित किया गया है। जैसे कि धर्मशास्त्र संबंधित ग्रंथ, अर्थशास्त्र संबंधित ग्रंथ, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र संबंधित ग्रंथ, जिसमें आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ परंपरा, विशेष रूप से उपनिषद ग्रंथ परंपरा आ जाती है पूरी, जो मोक्ष पर विशेष रूप से चिंतन करता है, जिसमें दर्शन भी आ जाता है। और काम शास्त्र जो है कि इस रूप में है। अब हम बात करते हैं जो है कि इसको लेकर, तो भारतीय ज्ञान परंपरा में एक चीज हमेशा सर्वमान्य रही है कि दो चीजों को लेकर चलता है, जैसा कि सामान्यतः विद्वानों में है भी, लोग इसको कहते भी हैं कि यह परंपरा जो है कि
आपका नितांत भौतिकतावादी दृष्टिकोण को खंडित करती है, नहीं मानती इसको। और उस नितांत भौतिकतावादी दृष्टिकोण से उपजी हुई जो डिबेट परंपरा एक तरह से, उसको भी नहीं लेती। तो पहला आता है नितांत भौतिकतावादी विचार पद्धति, और दूसरा आता है भौतिकता या भौतिकवादी व्याख्या पद्धति से उत्पन्न विचार। इन दोनों चीजों को भारतीय संस्कृति इन दोनों मतों का विरोध करती है और किसी भी बात को शास्त्र के रूप में विरोध करती है। और भारतीय शास्त्र परंपरा और भारतीय ग्रंथ परंपरा, इवन भारतीय आचार्य परंपरा, ये तीनों परंपराएं एक दूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध है। इनमें भेद दृष्टि नहीं है, यह वस्तुतः अभेद दृष्टि में है। और जब काम शास्त्र के इतिहास पर हम आते हैं तो अभी काम सूत्र से पूर्ववर्ती ग्रंथ देखेंगे तो उसमें आपका आ जाएगा पौरुरवस मनसी सूत्रम, स्मर कारिका आएगा, बाभ्रव्य कारिका आएगा, और उसके पहले के आचार्य दत्तक का ग्रंथ आएगा, आचार्य चारायण का ग्रंथ आएगा, आचार्य सुवर्णानाभ का आएगा। तो ऐसे ऐसे करके आचार्य गोनर्दीय का ग्रंथ आएगा। ये पूरी परंपरा आएगी। और काम सूत्र के बाद आएंगे तो आपको उसमें कोक ऋषि के ग्रंथ आ जाएंगे, ज्योतिश्वर के ग्रंथ आएंगे, आपका कुट्टनीमतम आएगा, आपका अनंगरंग आएगा, आपका आचार्य सोमराज दीक्षित का ग्रंथ है रति कल्लोलनी, जिसमें वो बोलते हैं काम के विषय में कि तद ब्रह्म तदकृति तदैव कर्म कवयो वदन्ति। तो हमारे यहाँ काम को लेकर तीन जो है कि पक्ष रहा। एक रहा काम ब्रह्म, दूसरा है काम पुरुषार्थ, और तीसरा है काम रिपु। तो इस पर हम विशेष रूप से कभी बाद में नेक्स्ट लेक्चर में इस पर हम रखेंगे काम को ही लेकर प्रॉपर। लेकिन 2 लाइन में इसको मैं बता देता हूं आप लोगों को कि काम ब्रह्म जो है वो चराचर जगत में है, उसको आकर्षण शक्ति, उसको ऊर्जा बोलते हैं, जो कि सब में है। उसी को लेकर हमारे आचार्य एक हुए भट्टहरि, वो कहते हैं कि कामेन बीतो ब्रह्मा कामेन बीतो हरि कामेन बीतो शंभु शक्र कामेन निर्जिता। तो इस प्रकार का भी हमारे यहाँ मत है। और इसको पूरा जो है कि एक संवैधानिक दृष्टि से, इसको एक मर्यादित दृष्टि से अध्ययन अध्यापन करने की जरूरत है। और भारत में इस बात होती है आजकल की, बहुत पहले से बात हो रही है सेक्स एजुकेशन की। तो मैं बोलता हूं कि सेक्स एजुकेशन की बजाय हमें शास्त्र परंपरा का ज्ञान दे लोगों को, स्पेशली उनको कामसूत्र ही पढ़ाएं, उनको पुरुषार्थ के विषय में पढ़ाएं, जिसके माध्यम से उनको वेद वेदांग उपनिषद भारतीय ज्ञान परंपरा का भी ज्ञान होगा। और उनको जैसा कि इसका प्रारंभ हुआ, मैं बताया कि धर्मार्थ कामेभ्यो नमः से जो यात्रा प्रारंभ होती है, वह यात्रा अस्य शास्त्रज्ञ तत्वज्ञा भवेत जितेंद्रिय तक समाप्त होती है। तो इस रूप में जब इस शास्त्र का हम ज्ञान देंगे तो यह कहीं न कहीं से विश्व समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए, विद्वत समाज के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो भारतीय बौद्धिक परंपरा में ऋषि ऋषिकाओं ने मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक शास्त्रों के माध्यम से चिंतन मनन किया और मार्ग प्रशस्त किया। और इसी चिंतन परंपरा में उन लोगों ने काम शास्त्र का भी चिंतन किया, जिसमें जो है कि यह शास्त्र परंपरा पूरी ज्ञान परंपरा को पूरी एक जिसमें आपका पुरुषार्थ आ जाता है, जिसमें आपका 16 संस्कार आ जाएंगे, इन सब को पूरा व्याख्यायित करती है ज्ञान परंपरा। और ये चीज मैं और बताऊं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कि दर्शन, अध्यात्म, तंत्र, शास्त्र, विज्ञान, यह पांचों तात्विक दृष्टि से एक ही है। ये एक तरह से संपूरक अर्थ सत्ता को व्याख्यायित करती है। इनमें वैसे भेद नहीं है, इन सब में अभेद दृष्टि है। तो अध्यात्म, शास्त्र, धर्म, दर्शन, तंत्र और विज्ञान। और जो ट्रांसलेशन होता है, ये समस्याएं
इसमें मैं संक्षेप में इसका इतिहास बता देता हूँ कि ब्रह्मा जी के द्वारा शुरू हुआ। ब्रह्मा जी ने जो है कि जैसा कि कामसूत्र में भी उल्लेख आता है, 1000 श्लोकों के माध्यम से उपदेश दिया देवगणों को। उसके बाद जो है कि मनु ने उसी का अध्ययन करके, ऐसा उल्लेख मिलता है और इसका रेफरेंस है कि उन्होंने धर्मशास्त्र पर चिंतन किया। बृहस्पति ने उसका लेकर जो है कि बृहस्पति अर्थशास्त्रम पर चिंतन किया, जिसको आधार बनाकर आगे चलकर चाणक्य ने चाणक्य अर्थशास्त्र लिखा गया। और नंदी ने, जो कि एक विद्वान है, और नंदी को बताया जाता है कि नाभि तंत्र विज्ञान के वो प्रथम आचार्य नंदी। तो नंदी ने जो है कि काम शास्त्र पर वो किया। पहले प्रवाच सिस्टम था, श्रुति परंपरा थी, फिर इसको इन्होंने आगे बढ़ाया। नंदी के बाद उस परंपरा को 500 अध्यायों में उद्दालक ऋषि के पुत्र श्वेतकेतु, जिनका उल्लेख छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद और तैत्तिरीयोपनिषद में आता है, और बहुत ही उत्कृष्ट स्तर के विद्वान थे। तो उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और पहली बार उन्होंने विवाह को एक संगठित, मर्यादित और संयमित रूप में व्याख्यायित किया, और इस शास्त्र को लेकर पूरा आगे उन्होंने चिंतन मनन किया। उसके बाद आते हैं बाभ्रव ऋषि। बाभ्रव ऋषि ऋग्वेद की बहब्रिज शाखा के ऋषि हैं, और जिन्होंने पहले ऋग्वेद हमारा अष्टक क्रम में था, उसको इन्होंने मंडल क्रम में विभाजित करने का कार्य, उसको पिरोहित करने का कार्य बाभ्रव ऋषि ने ही किया है। और उसी बाभ्रव ऋषि ने 150 अध्यायों में काम शास्त्र पर ग्रंथ लिखा। हालांकि वह बाभ्रव कारिका का उल्लेख वात्स्यायन बार बार करते हैं, और पंडित ढूंढीराज शास्त्री ने बाभ्रव कारिका को प्रकाशित किया है। ऐसा माना जाता है विद्वत समाज के द्वारा, पंडित ढूंढीराज शास्त्री की जो परंपरा है, और बहुत बड़े संस्कृतज्ञ थे, कि यह उनकी ही रचना है। अब आते हैं जो है कि हम इनके बाद, बाभ्रव के बाद जो है कि इनका ग्रंथ बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही विशाल था। इसके बाद आचार्य आते हैं, 7 आचार्य आते हैं, जिसमें ये सब आचार्य लोग इस पर पूरा फिर चिंतन करते हैं। जैसे कि आचार्य चारायण होते हैं। आचार्य चारायण जो हैं, वह चारायणीय शिक्षा के आचार्य, उन्होंने ग्रंथ लिखा, और कृष्ण यजुर्वेद के चारायणी शाखा के प्रवर्तक हैं। तो इन्होंने भी काम शास्त्र पे ग्रंथ लिखा, और स्पेशली उसमें से इन्होंने साधारण अधिकरण पर ग्रंथ लिखा। और उसके बाद आचार्य सुवर्णनाभ आते हैं, जो सांप्रयोगिक अधिकरण पर ग्रंथ लिखते हैं। उसके बाद आचार्य घोटकमुख आते हैं, जो कन्या संप्रेक्षक पर ग्रंथ लिखते हैं। उसके बाद आचार्य गोनर्दी आते हैं। अब आप लोग को यह आश्चर्य होगा शायद कि आचार्य गोनर्दी हैं कौन। तो पतंजलि का ही एक नाम मिलता है, गोनर्दीय। गोनर्दीय नाम से भारत में 2 स्थान मिलता है। एक तो गोनर्द प्रदेश जो है कश्मीर में, और दूसरा कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो गोंडा जिला है। इसको लेकर विद्वानों में हालांकि मत वैभिन्न है। तो पतंजलि ने जो है कि आचार्य गोनर्दीय ने भार्याधिकारिक अधिकरण पर ग्रंथ लिखा। उसके बाद गोड़िका पुत्र होते हैं, या पारदारिक अधिकरण पर ग्रंथ लिखते हैं। उसके बाद जो है कि आचार्य दत्तक होते हैं, पटना के, पाटलिपुत्र के, वह जो कि वैश्विक अधिकरण पर ग्रंथ लिखते हैं। और उसके बाद आचार्य कुचमार जो होते हैं, वह औपनिषदिक अधिकरण पर ग्रंथ लिखते हैं। तो ये इतनी पूरी जो ज्ञान परंपरा थी, इस पूरी ज्ञान परंपरा को आचार्य वात्स्यायन काम सूत्र में पूरा पुरोहित करते हैं, और अपने देश काल परिस्थिति गुणधर्म के अनुसार उसकी व्याख्या पद्धति के माध्यम से आगे उसको व्याख्यायित करते हैं। और उन्होंने काम सूत्र लिखा। और काम सूत्र जब वो लिखते हैं, तो काम सूत्र में उन्होंने 7 अधिकरण यही सेम वैसे ही रखे हैं। उसमें इन्होंने 36 अध्याय, 64 प्रकरण और 1250 सूत्रों में इसको पूरा वो व्याख्यायित करते हैं। और आचार्य वात्स्यायन का समय ऐसा विद्वानों में हालांकि मत वैभिन्न है, लेकिन भारतीय विद्वानों का मानना है
कि दूसरी से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए हैं। और उन्होंने लिखा, और काम सूत्र पर जो जयमंगला टीका लिखा गया आचार्य यशोधर के द्वारा अपने गुरु इंद्रपाद के कहने पर, 1243 से 1261 के बीच में हुए, तो उसी समय में इन्होंने लिखा है। अब जो है कि हम आते हैं इस शास्त्र पे जो है कि इसका उद्भव और विकास को लेकर, तो इसका वहां पर जो है कि ब्रह्मा जी से लेके पूरी परंपरा का उद्भव होता है, और उस परंपरा को लेकर ब्रह्मा जी से लेकर, नंदी से लेकर, श्वेतकेतु से लेकर, बाभ्रव्य से लेकर, पुरुरवा से लेकर, वास्या और चारायण से लेकर, औपनिषदिक के रचयिता से लेकर वास्यायन फिर इस पूरी परंपरा को पुरोहित करते हैं। फिर 18वीं शताब्दी में कंजौर की शासक होते हैं, उनके शासन काल में गणिका होती है, गणिका का नाम होता है मुद उपलानी, और वह एक ग्रंथ लिखती हैं राधिका स्वांत नमु। तो इस प्रकार से पूरी परंपरा पर ग्रंथ लिखा गया। और इसको अब आते हैं इसके अन्य ट्रांसलेशन को लेकर। पहली बार कि वेस्टर्न कंट्रीज में यह परंपरा कैसे गई, क्योंकि वहां पर तो इस प्रकार का चिंतन मनन था नहीं। हालांकि कुछ लोगों ने कहीं कहीं वहां पर था, इरोस का कॉन्सेप्ट है तो वो अलग, यहाँ से पूरा भिन्न ही कॉन्सेप्ट है। फिर क्यूपिड का कॉन्सेप्ट है तो वो भी एक अलग ही भिन्न ही कॉन्सेप्ट है। तो उस पर अभी हम आज नहीं जाएंगे, आज हम केवल कामशास्त्र के इतिहास पे ही जाएंगे जो भारतीय ज्ञान परंपरा में है। उसके बाद हम आते हैं आपका कि देखिए मैं कुछ बता रहा था और मेरे दृष्टि से निकल गया, कोई बात नहीं। हाँ, तो वेस्टर्न कैसे, तो 1883 में एफ बर्टन होते हैं, और वह जो कि बनाते हैं हिंदू कामशास्त्र सोसाइटी, और उसके माध्यम से वह इसका ट्रांसलेशन कराते हैं 1883 में। और अब कितना सही ट्रांसलेशन करते हैं, कितना गलत करते हैं, यह विद्वत समाज डिसीजन लेगा, लेकिन बहुत सारी भ्रामक स्थिति वह उत्पन्न करते हैं, लेकिन अपने दृष्टि में उस समय के अनुसार ठीक ही ट्रांसलेशन करते हैं। उसके बाद के जो लोग कुछ हुए ट्रांसलेशन और ही गलत किए और गलत व्याख्यायित किए, तो उसके बाद वह जो है कि अनंग रंग काम सूत्र इन सब का पूरा ट्रांसलेशन होता है, और वहां पूरी ग्रंथ परंपरा जाती है। और एक अज्ञान के चलते या एक विशेष प्रकार की मानसिकता से ग्रसित होने के कारण इस शास्त्र को लोगों ने एक दूसरी दृष्टि में ही व्याख्यायित करना शुरू कर दिया। जिस शास्त्र का अध्ययन अध्यापन हमारे भारत में गुरुकुलों में कराया जाता था पूरा, और जिस शास्त्र परंपरा में 100 से अधिक ग्रंथ लिखे गए, और वैसे वैसे आचार्य ऋषि मुनियों ने, कवियों ने ग्रंथ लिखा, जो कि अब बताइए कि आचार्य बाभ्रव हैं, वह ऋग्वेद की बहवरी शाखा के आचार्य हैं, लेकिन वो ग्रंथ लिख रहे हैं। महाभारत में इन सबका उल्लेख आता है, रामायण में इन लोगों का उल्लेख आता है। अब श्वेतकेतु आचार्य हैं जो उपनिषदों में पूरा वह इस पर चिंतन कर रहे हैं। चारायण ऋषि आते हैं जो चारायणीय शाखा के आचार्य हैं और चारायणीय शिक्षा ग्रंथ के आचार्य हैं, वह भी इस पर ग्रंथ लिखते हैं। तो ये अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे गए, और काम शास्त्र को लेकर जो अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई हैं, यह सारी भ्रांतियां एक विशेष प्रकार के कुत्सित मानसिकता के लोगों के द्वारा एक राजनैतिक द्वेष के कारण फैलाई गई है। तो यह काम शास्त्र का संक्षेप में इतिहास रहा, हालांकि समय भी मुझे कम ही मिला है। इसके बाद जैसा कि आप प्रश्न करेंगे उसके आधार पर मैं आंसर देता हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने इतिहास बताया इसका, कामशास्त्र का। एक आपने कुछ आचार्यों के नाम बताए, और एक चीज तो आपके इस वार्ता से एक चीज तो साफ हो गई आपने इस टॉक से, कि काम शास्त्र जो है वो एक अध्यात्म की दृष्टि से लिखा गया है। वो जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं विभूति योग के चैप्टर में कि जो धर्मानुसार, वो तो भगवान तो चाहते, ब्रह्मा का तो कर्तव्य है कि पॉपुलेशन बढ़ाए, चाहते ही हैं,
लेकिन अच्छी पॉपुलेशन आए, देव तुल्य लोग आए पृथ्वी पे, ये एक पर्पस है। तो हर चीज के लिए गाइडेंस दी जाती है, इसके लिए भी गाइडेंस दी गई है। तो इतने जो बड़े ऋषि मुनि हैं, जब इस पे जो व्याख्या कर रहे हैं, तो उनका दृष्टिकोण क्या है, मनुष्य को उससे क्या सीखने को मिल सकता है? जी, मैं बोलूँगा। यस प्लीज। जी, तो इस शास्त्र को लेकर मूल उद्देश्य, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। इस शास्त्र को जैसा कि लिखने पढ़ने का या इसको चिंतन मनन करने का ब्रह्मा जी के परंपरा से यदि हम देखें या आज के आचार्य से देखें, तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि एक हम संस्कारित, सुसंगठित और अच्छी समाज का निर्माण करें, अच्छी जो है कि संतति परंपरा का निर्माण करें। हर एक माँ बाप की सबसे अच्छी इच्छा यही होती है, चाहे वो इंडियन पेरेंट्स हो, चाहे अमेरिकन पेरेंट्स हो, चाहे यूरोपियन पेरेंट्स, कोई भी हो, वो यही चाहते हैं कि उनकी जो आने वाली पीढ़ी हो वह हृष्ट पुष्ट और बलिष्ठ हो और ज्ञानी हो, स्वस्थ हो, समृद्ध हो। और यह शास्त्र इन्हीं पक्षों को ध्यान में रखकर पूरा चिंतन मनन करता है, अध्ययन करता है। इस शास्त्र का मूल उद्देश्य यही है कि अच्छे समाज का निर्माण हो और वह अच्छे संतति का निर्माण हो। और इसीलिए यह लोग जो है कि संप्रयोग यज्ञ की बात करते हैं, जिसको संभोग यज्ञ भी कहा जाता है, जिसमें यह लोग बताते हैं आचार्यगण कि आज देखिए पूरी दुनिया में सब लोग संभोग करते हैं, सबके बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं और बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। और बहुत से लोग तो अब देख ही रहे हैं, किसी के 20-20 बच्चे हो रहे हैं, 30 हो रहे हैं, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, संसाधन बहुत कम है। हालांकि उस पक्ष पर अभी बात करना ठीक नहीं है, बाद में कभी बात होगी। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो संप्रयोग यज्ञ ये लोग क्यों रखे, उसमें यही बताया कि हमारे ऋषि मुनि सब लोग संप्रयोग यज्ञ करते थे। यदि संप्रयोग यज्ञ न करते तो परशुराम न होते, यदि संप्रयोग यज्ञ न होता तो वशिष्ठ न होते, संप्रयोग यज्ञ न होता तो वाल्मीकि न होते, संप्रयोग यज्ञ न होता तो कालिदास, तुलसीदास, ऐसे ऐसे आचार्य दिग्गज न हो। तो हालांकि इसी बात को भगवान श्री कृष्ण की आपने बात की, गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत। तो वहां पर वह जो कि सुप्रीम पावर की बात कर रहे हैं, जो कि चराचर जगत में विराजमान है, और काम पुरुषार्थ के माध्यम से आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें जो धर्म के विरुद्ध न हो, धर्म से बधा हुआ। और इसीलिए वात्स्यायन भी जब कामसूत्र का प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं कि धर्मार्थ कामेभ्यो नमः, धर्म अर्थ और काम को नमस्कार है। हालांकि पुरुषार्थ पर हम कभी बाद में क्या अवधारणा है, पुरुषार्थ कितने प्रकार के हैं, और उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और फिर भक्ति पुरुषार्थ आती है, इसकी पूरी क्या यात्रा है। जैसे काम शास्त्र केवल पुरुषार्थ त्रिवर्ग को मानता है और मोक्ष के विषय में कहता है कि चलिए ध्यान नहीं आ रहा है, अस्था वीरम मोक्ष, अस्था वीर धर्मम मोक्षम च, ऐसा कुछ लाइन आता है। वह धर्म के अंतर्गत ही मोक्ष को पिरोहित कर देते हैं। उनका मानना यह है कि यदि धर्म, अर्थ और काम का सुचारू और सम्यक रूप से आप पालन करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाएगी, मोक्ष का अनुभव हो ही जाएगा। और जब आपको अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि की अनुभूति होने लगेगी तो मोक्ष की अनुभूति तो हो ही जाएगी। अब आपका जो यह प्रश्न है कि शास्त्र को लेकर कैसे कैसे क्या चीजें की गई हैं, तो हमारे आचार्यों ने एक उत्कृष्ट समाज बनाने के लिए, उत्कृष्ट संतति बनाने के लिए संप्रयोग यज्ञ की अवधारणा रखी। उसमें यह पूरा, अगर आपकी इच्छा होगी तो हम यह भी कभी बताएंगे कि संप्रयोग यज्ञ कैसे किया जाता है, उसमें क्या खाया जाता है, क्या पिया जाता है, उसकी जीवन पद्धति क्या होती है, उसमें बातें क्या करनी चाहिए, उसमें पढ़ना क्या चाहिए,
क्या खा पी कर संप्रयोग यज्ञ करना चाहिए, उसकी अपनी एक पूरी मेथोडोलॉजी, वो ये अपना एक अपनी आप में संप्रयोग साइंस है, वो संप्रयोग विज्ञान है कि एक हृष्ट पुष्ट संतति का निर्माण कैसे हो, एक हृष्ट पुष्ट समाज का निर्माण कैसे हो। तो संप्रयोग यज्ञ, संभोग यज्ञ, संभोग विज्ञान इसी पर पूरा चिंतन करता है। नहीं, आपने बहुत ही अच्छा, और एक्चुअली मैं भी आपसे बहुत सीख रहा हूँ, क्योंकि ये इस एरिया में मैंने कभी पढ़ा नहीं, तो फर्स्ट टाइम। लेकिन मुझे इतना परंपरा में ऐसा लिखा गया है, काम शास्त्र जो है वो भी अध्यात्म का ही पार्ट है, और ये शास्त्रों में सत्य लिखा वचन, गया है। और सत्य वचन, क्योंकि अध्यात्म, हमारे वेद शास्त्र जो है कर्म बंधन से मुक्ति का ही साधन देते हैं। जैसे आपने पुरुषार्थ की बात की, सत्य धर्म वचन। अर्थ काम मोक्ष, जी 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 और उसमें काम शब्द जी है, जी लोग बोलते हैं लेकिन जी काम को इग्नोर कर देते हैं, उसको नेगेटिवली लेते हैं, क्योंकि ये अब्राहमिक प्रचार है कि काम खराब है, जबकि वहां पे तो जघन्य तरह के काम होते हैं। लेकिन वो ये जो प्रचार जो करते हैं वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि सृष्टि में सृजन का कार्य तो गृहस्थ ही करता है, ये सारे काम शास्त्र गृहस्थ वर्ण पर ही लगते हैं, आश्रम पर सारे। हाँ, बोलिए। जी सर। हाँ, आपके इस चीज को मैं ये इसमें मैं कुछ पॉइंट बोलना वही चाह रहा हूँ, क्योंकि वहां पे जो पुरानिक नॉलेज सिस्टम है या बाइबलिक नॉलेज सिस्टम है, जिसको सिमियोटिक बोला जाए तो ठीक है, उनका अपना सोचने का तरीका का, उनके पास ऐसा कोई नॉलेज सिस्टम नहीं था, ऐसा कोई टेक्सुअल ट्रेडिशन नहीं था, जिस कारण से उनके यहाँ अनेक प्रकार की भ्रामक स्थिति होती है। लेकिन हमारे यहाँ इस पर पूरा इस प्रकार का चिंतन हुआ है, और इसमें नो डाउट कि काम शास्त्र आध्यात्मिक शास्त्र परंपरा है। कोई भी शास्त्र परंपरा आध्यात्मिक शास्त्र परंपरा होती है जब उसका एक संयमित और मर्यादित रूप में अध्ययन अध्यापन होता है, चिंतन मनन होता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि पूरी भारतीय ज्ञान परंपरा पूरे विश्व से अपने आप को एक यूनिक रखने का रीजन यह भी है कि हमारे यहाँ ही कामाक्षी देवी की अवधारणा है, हमारे यहाँ ही कामाख्या देवी की अवधारणा है, हमारे यहाँ ही कामदेव की अवधारणा है। तो जिस कामाक्षी देवी, कामाख्या देवी और कामदेव, यह वस्तुतः है क्या, यह एक सुप्रीम पावर के रूप में है जो चराचर जगत में विराजमान है, और ये एनर्जी के रूप में पूरे विश्व को व्याख्यायित कर रहे हैं। और यह आप देखेंगे कि एक वस्त्र है, उस वस्त्र में भी काम, काम क्या है, आकर्षण शक्ति है। हम आप अमेरिका में बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, हम आपके उस काम के ही माध्यम से हम आप बैठे हुए। यहाँ पे एक भ्रामक स्थिति और मैं बता दूं, जो वर्क का काम है, जिसका ट्रांसलेशन वर्क होता है, वह काम कर्म शब्द से बना हुआ। जैसे धर्म संस्कृत शब्द है, इससे धर्म बनता है, इसी से जो है कि धम्म बनता है पाली प्राकृत में, आते आते धाम शब्द बनता है। ऐसे ऐसे पूरी एक यात्रा होती है। तो वैसे ही आपकी कर्म शब्द है, कर्म से पाली में कम्म शब्द बनता है, और फिर आकर कर्म शब्द बनता है, और अब आकर कार्य कार्य शब्द बनता है। उसको अब लोग जो है कि काम बोलने लगते हैं। तो वह वर्क के प्रोसीजर में, और जो रियल लेकिन काम शब्द है संस्कृत निष्ठ, जो कमु इच्छायाम धातु से बनता है, यह जो है कि काम शक्ति, काम ब्रह्म, काम पुरुषार्थ, काम रिपु के रूप में होता है। तो इसमें मैं हालांकि इस पर कभी विस्तृत रूप से बाद में लेक्चर दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा में आपको काम ब्रह्म को प्राप्त करना है, जहां पर यह अनुभूति हो जाए कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। ये हमारे, ये इस प्रकार की जब आध्यात्मिक अनुभूति हो जाती है, तब आप काम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, काम शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए नासदीय सूक्त जो ऋग्वेद का है, वहां बोला जाता है कि कामस्त अग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः, इस प्रकार का उल्लेख वहां पर आता है। फिर इसी बात को उपनिषद बोलता है सो कामयत। इसी बात को फिर जो है कि शिव शक्ति के रूप में व्याख्यायित करते हुए आपका अथर्ववेद कहता है कि शिव शक्ति समायोगात जायते सृष्टि संकल्पना।
इसी बात को रति कल्लूरनी में आचार्य दीक्षित साम्राज्य बोलते हैं कि अ, 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 तत् तद ब्रह्म तत्कर्तृ तदैव कर्म कवयो वदन्ति, यह इनका स्टेटमेंट है। इसी इसी बात को जो है कि आगे चलकर सिद्ध करते हुए हमारे यहाँ आचार्य जो है कि वास्यायन बोलते हैं, जब काम की यह मीनिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि श्रोत्रक्त चक्षु जिह्वा घ्राणा नाम आत्म संयुक्त, आत्मा से वो संयुक्त होना चाहिए, मनसादिष्ठता नाम स्वेश स्वेश विशेषवानुकूल्यता प्रवृत्ति कामा। तो इस प्रकार की इसकी पूरी यात्रा होती है। और यह जो अनेक प्रकार की भ्रामक स्थिति है, इन सब का खंडन होता है। और पूरा एक शंकराचार्य, इवन बृहद आर्योपनिषद का जब अध्ययन करेंगे आप, आवाज जा रही मेरी सर? जब बृहद आर्योपनिषद का अध्ययन करेंगे तो उसमें आता है श्रीमंत कर्म। श्रीमंत कर्म का जब प्रभाष्य लिख रहे हैं शंकराचार्य जी, तो वह इन सब विषयों में काफी अच्छा चिंतन कर रहे हैं और लिख रहे हैं। इस पर भी चलिए हम कभी बाद में चर्चा करेंगे जब समय मिलेगा, क्योंकि वो तो और फिर हमारे यहाँ एक उपनिषद है गर्भोपनिषद, तो गर्भोपनिषद इन सब विषयों पर पूरा चिंतन करता है। तो ये इस प्रकार की पूरी भ्रामक स्थिति है। और आप अगला क्वेश्चन पूछें तो। नो एक्चुअली आपने हेलो। हाँ, तो ये जो अब्राहमिक थॉट प्रोसेस है, अभी देखेंगे तो वहां पे महिलाओं का शोषण एक तरीके से उनके उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है। जैसे कि आपको अमेरिका का ही उदाहरण दे दूं मैं। अमेरिका में 1960 तक महिलाओं को, एक्चुअली 1937 तक महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था वहां पर। वोटिंग राइट नहीं था। और 1895 तक औरतों को माना जाता था कि वो वस्तु है, जानवर के समान। ये तो बाइबल में लिखा है पूरा। बाइबल जब स्टार्टिंग में पढ़ेंगे आप, तो वहां तो दो चीजें हैं। ये बहुत अच्छा चीज में आपने बोला, मैं इसमें 2 लाइन और ऐड कर देता हूँ। बाइबल जब आप या सिमियोटिक कल्चर का कोई भी टेक्स्ट पढ़ेंगे, स्पेशली अभी हम बाइबल कुरान की ही बात करें, तो बाइबल में तो है ना कि वुमेन आर सिनफुल। वो वुमेन आर सिनफुल क्यों है? क्योंकि वो एप्पल खाता है। वो एप्पल जैसे जो कंपनी है, एप्पल कंपनी को आप देखेंगे थोड़ा सा कटा हुआ सेव क्यों है? वह थॉट प्रोसेस, बाइबल का ही थॉट प्रोसेस वो लोग लेके उसको बनाए हुए हैं, देखा जाए तो। क्योंकि वह, हाँ, वह उसको खाता है। और किसके कहने पर खाता है? वह वुमेन के कहने पर खाता है। तो उसको फिर वो जो है कि सारा चीज को नरक, ये सारी चीजें मिलती हैं। और जिस कारण से वो सब कहते हैं कि महिलाएं वुमेन आर सिनफुल। और भारत में इसका 16वीं शताब्दी में ट्रांसलेशन होता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है। और भारत में इसको लोग इतना तेजी से फेमिनिस्ट मार्क्सिस्ट फैलाते हैं कि नारी नरक का द्वार होती, ये भारत में फैला। और ये, लेकिन ये बाइबलिक लाइन का ट्रांसलेशन, या जिस देश में यत नार्यस्तु सर्व पूजन्ते रमनते तत्त देवता की अवधारणा है, जिस देश में गार्गी, अपाला, घोषा, विश्वारा जैसी विदुषी हैं, जिस देश में, मैं आपसे मित्र आदित्य जी एक प्रश्न आपसे मैं कर रहा हूं कि आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, आप, हम लोग 21st सेंचुरी में बात कर रहे हैं, जी रहे हैं। आप ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, जेएनयू, डीयू, पेंसिल्वेनिया, बीएचयू या किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कीजिए, एमआईटी की बात कीजिए, जब किसी प्रोफेसर को यदि यह पता हो कि मेरी जो स्टूडेंट है यह प्रोस्टिट्यूट है, क्या वो अपने अंडर में उसको एडमिशन देगा, पढ़ाएगा, पीएचडी कराएगा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा में इंटरेस्टिंग चीज अब आपको बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो गणिकाएं होती हैं, हमारे यहाँ जो वेश्याएं होती हैं, वो परम विदुषी होती हैं। और इस चीज को हमारे यहाँ एक विद्वान हुए केशव दास, हिंदी साहित्य के बहुत उत्कृष्ट स्तर के विद्वान हुए और कृष्ण जी के उपासक थे। उनकी एक गणिका थी, मतलब शिष्या थी,
जिसका नाम था कवि प्रिया। तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है कनु प्रिया, कवि प्रिया, इस प्रकार की, तो वह उसकी उनकी शिष्या थी और वो शिष्या के आधार को वह ग्रंथ लिखे हैं। वैसे ही जैसा कि मैं बताया कि 18वीं शताब्दी में तंजौर के शासक में गणिका होती हैं, मुद उपलानी और ग्रंथ लिखती हैं राधिका स्वांतनम। तो इस देश में तो गणिकाएं ग्रंथ लिख रही हैं, तो आप कहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ महिलाओं को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। चलिए, अच्छा मुझे कोई यह बता दे कि 12वीं शताब्दी के पूर्व या वैदिक पीरियड के टाइम में इस प्रकार का सिमियोटिक कल्चर में किसी ने ग्रंथ लिखा है? हमारे यहाँ तो इनको पूरा अध्ययन अध्यापन का पूरा क्षेत्र है। तो यह तो वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जब उनका पूरा हिस्ट्री देखेंगे, क्योंकि उनका तो जो भी विकास हुआ 16वीं शताब्दी के बाद हुआ, जब औद्योगिक क्रांति आती है और सारा चीज होता है, लूट खपाट करते हैं इधर उधर की चीजें। तो ये अलग मैटर है, इस आज का हम लोग का टॉपिक ये नहीं है। इस टॉपिक पे हम लोग कभी बात करेंगे, लेकिन इसमें नो डाउट कि वहां पर जो है कि महिलाओं को उन लोगों ने अधिकार नहीं दिया। महिलाओं को वहां पर तो यह भी था कि हालांकि बहुत जगह होता भी है कि उनका जो क्लिटोरस होता है, क्लिटोरस के पार्ट को लोग कट कर देते हैं, ओ जिससे कि उनको इंजॉयमेंट न आए। महिलाओं के अनेक चीजों को लेकर करते हैं। हालांकि फेमिनिज्म जो स्टार्ट हुआ वह इन्हीं सब दृष्टिकोण से स्टार्ट हुआ। फेमिनिज्म वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से ठीक है, बट जब इंडियन पर्सपेक्टिव में ये लोग उसको थोपते हैं तब वो गलत हो जाता है। हमारे लिए तो स्त्री सशक्तिकरण का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण गार्गी मैत्रेयी है। इससे बड़ा तो कोई स्त्री सशक्तिकरण का उदाहरण ही नहीं। नहीं, पाश्चात्य देशों में जहाँ पे मैं रहता हूँ, इन देशों में हर चीज अर्थ संचयन के लिए किया जाता है, हर चीज जी इकोनॉमिक। जी और जी इकोनॉमिक्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये भगवान ने जी बोला ही है, भगवान कृष्ण ने बोला ही है, असुरों का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, अर्थ संचय। तो जी यहाँ जी पे आसुरिक मेंटेलिटी है, ये पूरी मानसिकता ये आसुरिक है। जी और ये तो मैं ओपनली जी बोलता हूँ, अमेरिकन को ओपनली सारी जी टॉक्स में बोलता हूँ, तो उसमें कोई ये भी समझते हैं, छुपाते नहीं है। लेकिन जी जो प्रॉब्लम है वो आता है यूनिवर्सिटीज में, जी एकेडमिक सर्कल जी में सबसे ज्यादा ढीठ लोग बैठे होते हैं। जी सत्य वचन। क्योंकि उन जिनको जिनको खुला दिमाग रखना चाहिए वो अपना दिमाग बंद करके रखते हैं। चाहे आप एमआईटी की जी बात कर लें, चाहे हार्वर्ड की बात कर लें, चाहे स्टैनफोर्ड की बात कर लें, सारे स्टूडेंट्स अभी देख जी ही रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स देख ही रहे हैं। तो जिनको समझ जी में आ रहा है वो बोल सकते हैं क्योंकि अब हिंदी में है, लेकिन सबको हाँ, मालूम है। ये चीज मैं और यहाँ कहना चाह रहा था कि इन सब सारी जो भ्रामक स्थितियों का निदान तभी संभव है जब सभी यूनिवर्सिटियों में सम्यक रूप से काम शास्त्रीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन अध्यापन कराया जाएगा। तभी इस प्रकार की भ्रामक स्थितियां दूर होगी, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी के मन मस्तिष्क में अनेक प्रकार के प्रश्न चल रहे हैं और वो लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। तो यदि उनको इस उनकी मनोप्रवृत्ति का, उनके शारीरिक प्रवृत्ति का ज्ञान यदि हम मर्यादित और संयमित रूप में एक शास्त्र परंपरा के रूप में यदि नहीं देंगे, तो वो बेचारे पथ भ्रष्ट हो जाएंगे, उनका पथ थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। तो इसलिए काम शास्त्र का या काम सूत्र का अध्ययन अध्यापन इस समय ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जेएनयू, बीएचयू से लेकर पूरे देश में देने की आवश्यकता है, न कि उसको सेक्स एजुकेशन के रूप में दिया जाए, उसको शास्त्र के रूप में दिया जाए। हाँ, क्योंकि ये सृष्टि को चलाने का काम ब्रह्मा का है। अगर हम लोग शास्त्र की दृष्टि से अच्छी अच्छी आत्माओं को नहीं बुलाएंगे तो उसका पर्पस डिफीट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद असुरिक लोग ही आएंगे सारे देश में, अमेरिका और ये दानव प्रवृत्ति जी ज्यादा आएगी। जी तो इसके जी पीछे एक बड़ा विज्ञान भी है कि किस तरह से अच्छी आत्माओं को बुलाया जाए गर्भ में, गर्भदान जी संस्कार और ये सब उससे जी कनेक्टेड जी है। तो जी जी एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग बंद करते हैं। तो एक बात तो सही है कि काम का अर्थ लस्ट नहीं होता, काम का हाँ अर्थ जी एक्सप्लॉयटेशन नहीं जी होता, सत्य। है ना। इवन एक चीज और, काम लस्ट और वासना दोनों अलग अलग है। लस्ट का ट्रांसलेशन जो लोग वासना करते हैं, बट वासना बहुत ही पॉजिटिव चीज है शैव दर्शन में, और लस्ट एकदम निगेटिव चीज है।
जैसे कि सेक्स एक तरह से केवल फिजिकल अट्रैक्शन है, लेकिन संभोग यज्ञ में आप जाएंगे, इसमें आपका जो कि आस्था, प्रेम, विश्वास, मनोयोग, रति, इतनी सारी चीजें जब उत्पन्न होती हैं, उसके बाद फिर उसका अपना एक साइंस है पूरा यह यज्ञ करने का। एक दिन प्रोफेसर बलराम सिंह जी से मेरी बात हो रही थी इसी को लेकर, कि हमारे यहाँ जैसे कि रावण उत्पन्न हुए, एक ही माँ से रावण भी उत्पन्न हो रहा है, एक ही माँ से विभीषण उत्पन्न हो रहा है। हालांकि इस पर मैं पूरा लिख पढ़ रहा हूँ, कभी आप टाइम देंगे तो इस पर मैं बताऊंगा कि उसका रीजन क्या है। हमारे यहाँ राम उत्पन्न हुए, हमारे यहाँ कृष्ण उत्पन्न हुए, अब राम कृष्ण क्यों नहीं आ रहे हैं? हमारे यहाँ जो है कि अत्रि जैसे ऋषि आते हैं, हमारे यहाँ तुलसीदास जी जैसे आते हैं, कालिदास जी जैसे आते हैं, इसका पूरा एक साइंस है। और जैसे कि जो यह आचार्य हैं वेद व्यास हमारे यहाँ आते हैं, वेद व्यास जी आते हैं, जो उनके पिताजी हैं पराशर, उनको कैसे उत्पन्न करते हैं। तो उन सबका ये संभोग यज्ञ का, संप्रयोग यज्ञ का पूरा एक रिसर्च करने की बहुत बड़ी जरूरत है, कि उत्कृष्ट पुत्र या पुत्री या संतान किस प्रकार से उत्पन्न किया जाए। और उत्कृष्ट संतान उत्पन्न करने का साइंस जो है संप्रयोग विज्ञान है, जो कि काम शास्त्र के अंतर्गत आता है। जी, बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया, क्योंकि ऋषि श्रृंग ने अथर्व मंत्र को जी, बोलते हुए जी, दशरथ महाराज का पुत्रेष्टि यज्ञ किया। जी, आजकल हम लोग चाहते हैं हर चीज पुत्रेष्टि, और गलत समय पे, गलत तरीके जी, से, और फिर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बने विवेकानंद या बड़े बड़े ऋषि बने। जी, पॉसिबल नहीं है। जी, 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 वेद व्यास को लिए भी जब पराशर मुनि ने जब देखा कि एस्ट्रोनॉमी के जी, थी कि क्या इस समय स्थिति है, तब जी, देवतुल्य व्यक्ति उनके गर्भ में आया। उन उस समय जी, हाँ, वो ग्रह उपग्रह सबका ध्यान रखा जाता है उसमें, बिल्कुल, और उसमें संप्रयोग वहीं पे, यज्ञ में। और द्वैपायन नाम ही से पड़ा द्वीप, उन्होंने समय देख के बुलाया कि अभी ये सही समय जी, है, उत्कृष्ट आत्मा को बुलाया जाए ऊपर से, है ना। जी, तो जी। ये एक अब विज्ञान एक है। चीज यहाँ मैं और बोलूंगा मित्र, एक चीज बहुत अच्छा आपने बताया, वो आया, मैं शायद यहाँ ऐड कर दूं तो सही रहेगा, कि इसमें आप देखेंगे कि हमारे यहाँ सारी चीजें जो आज बात होती है ना, कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब चीजों की, रोटी, कपड़ा, मकान, तो ये आपका जब संप्रयोग यज्ञ, संभोग यज्ञ सम्यक जब होगा, आपका उत्तम होगा, तो आपकी संतति उत्तम आएगी। और वही मैं बार बोलता हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन तीन, और संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, संस्कृति, इन तीनों, इन चारों का केंद्र बिंदु संभोग है, अर्थात संप्रयोग यज्ञ है। यदि वह उत्तम हो जाएगा, जैसा धरती में उर्वरा शक्ति, जैसा बीज डालेंगे आप, उसी प्रकार उसका स्वास्थ्य होगा, उसी प्रकार की उसकी शिक्षा होगी, उसी प्रकार की उसकी सुरक्षा होगी, उसी प्रकार वैसी संस्कृति डेवलप होगी। ये सारा पांचों चीजें यह संप्रयोग यज्ञ पर और जो है कि केंद्रित होती है। बस मैं ये कहना चाह रहा था। बहुत बहुत और धन्यवाद। इसीलिए हमारे यहाँ संस्कार सिस्टम को लागू किया गया। हाँ, लोगों को तो संस्कार के अकाउंट भी याद ही नहीं होगा कि कितने संस्कार जी, होते हैं, लोगों को याद ही नहीं होगा, जी, जी, क्योंकि हर चीज बोल दिया हाँ, गया है कि सब कुछ झूठ है, ये सब हाँ, बेकार की बातें हैं। अगर बेकार की जी, बातें हैं तो प्रोड्यूस करो आतंकवादी, और क्या है, उसमें क्या बड़ी बात है। हाँ। तब तो अफगानिस्तान में जो हो रहा है अब, हम्म, जो हो रहा है अब, उन्हीं लोग की इच्छा थी, यही हाँ, बोलना उचित है अभी तो। हाँ, क्योंकि असुर असुर का यही परिभाषा है। असुर जो है वेदों शास्त्रों को जी, रिजेक्ट कर देता है। भगवान बोलते भी, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धि आपृति न सिद्धि पराम गतिम, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं जी, है। तो ये भी शास्त्र है। तो बहुत जी, बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। और हम लोग छोटे छोटे जी, टॉपिक्स पे आगे डिटेल में भी जाएंगे। और मेरे को एक बहुत ही अच्छी बात लगी, आपने संप्रयोग यज्ञ का शब्द यूज किया, क्योंकि जी, यज्ञ, मनुष्य को यज्ञ कर्म करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन जी, कर्म करने का अधिकार नहीं दिया गया है। जी, कर्म तो कर्मण्येवाधिकार से लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन भगवान बाद में ये जी, बोलते योगस्थ कुरु कर्माणि,
संगम जी त्यक्त्वा धनंजय ना। तो जी बट योगस्थ करो, तो योग जहाँ पे योग आ गया वहां भगवान ऑटोमेटिकली आ गए, और जहाँ भगवान आ गए जी वही यज्ञ बन गया। तो बड़ा सिंपल जी है, लेकिन जिसको समझ में आएगा, जो स्वाध्याय करेगा उसको समझ में आएगा, जो नहीं करेगा उसको समझ जी में नहीं आएगा। तो बहुत बहुत जी। धन्यवाद, और अच्छा रिसर्च का टॉपिक है, बहुत ही अच्छा रिसर्च का टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, कभी एक एक बिंदु लेकर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। हाँ और जैसे किसी दिन जो मेरी थ्योरी है, ट्रिपार्टाइट थ्योरी ऑफ काम, काम के त्रिस्तरीय सिद्धांत, जिसमें काम ब्रह्म क्या है, काम पुरुषार्थ क्या है, काम रिपु क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि एक चीज और मैं आपको सूचित कर दूं कि जैसे कि स्त्री और पुरुष का ट्रांसलेशन लोगों ने क्या मेल और फीमेल, गलत ये है एकदम। उतना ही ये उतना ही भ्रामक है जैसे धर्म रिलीजन है, आत्मा सोल। बिल्कुल तो बिल्कुल। और इसीलिए ट्रांसलेशन करके उस ट्रांसलेशन के बाद बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अब ये बताया जाएगा बच्चों को कि हम वेद में तो पुरुष सूक्त है, स्त्री सूक्त है ही नहीं, तो जो है कि स्त्रियों का तो यह तो पुरुषवादी ग्रंथ है, यह तो स्त्रियों का तो शोषण हुआ है। नहीं, अगर कोई शास्त्र पढ़ेगा तो पुरुष का अर्थ होता है जो दूसरे को मेंटेन करे। तो अभी देखा जी जाए तो जी सभी सभी यहाँ पे जो अपने आप को मेल बोलते हैं सभी स्त्री हो गए, क्योंकि उनको कोई ना कोई और तो जी मेंटेन कर रहा है। जी। तो मेल फीमेल को नर नारी बोल सकते हैं, लेकिन स्त्री पुरुष नहीं बोल सकते। स्त्री पुरुष नहीं बोल जैसे सकते। कि एक और भ्रामक स्थिति हमारे यहाँ एनसीईआरटी में पढ़ाया भी जाता है, यूपीएससी के लोग ये लिख कर टॉप भी करते हैं कि भारत में 9 दर्शन है, 6 आस्तिक दर्शन है, 3 नास्तिक दर्शन है, जो कि पूरा जो वहाँ पे हेटेरोडॉक्स और वो पूरा कल्चर है उनका, सिम्योटिक नॉलेज सिस्टम का, उसका ये पूरा उदारीकरण है। माधवाचार्य होते हैं 12वीं शताब्दी में, वह एक ग्रंथ लिखते हैं सर्वदर्शन संग्रह, और उसमें वह जो है कि 16 दर्शन की चर्चा करते हैं। और बहुत सी जगहों पे हमारे यहाँ 31 दर्शन की चर्चा हो रही है, और किसी भी आचार्य मुनि ने हमारी ग्रंथ परंपरा में यह नहीं व्याख्यात किया है कि यह दर्शन आस्तिक है, यह दर्शन नास्तिक, लेकिन पढ़ाया लिखा है तो यही जा रहा है अज्ञानी समाज में। अब इस पर क्या किया जाए? हम लोग अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हैं, और सतोलॉजी का यही है कि डिबंकिंग मिथोलॉजी, ये जितना ज्यादा झूठ फैलाया गया है और हमारे जी कोर्स करिकुलम में डाल दिया गया है, तो माइंडसेट हम लोग सोचते इंग्लिश में है और बात करते हैं हिंदी में, उसको जी चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को संस्कृत हाँ भाषा में सोचना चाहिए और वेदों के जी माध्यम से अपना थॉट प्रोसेस रखना चाहिए। लोग बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा। जी हमारे शास्त्रों में कभी भी ये नहीं बोला गया कृषि गोरक्षा वाणिज्यम जॉब करने का प्रिंसिपल ही नहीं है कहीं पर, सही बात। है ना। दूसरों का नौकरी करने का प्रिंसिपल ही नहीं है। यहाँ तक कि हमारे यूनिवर्सिटी नालंदा में कोई भी एक भी ब्राह्मण पेड नहीं था, सब वॉलंटियर थे। जी वो अपनी जी आजीविका बाहर कमाते थे। अभी आजकल कलयुग का जी समय है, तो सब कुछ बदल गया है। तो जो हम्म हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है, वो ऋषि मुनि बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, थॉट प्रोवोकर्स हैं। कोई नोबेल पीस प्राइज के लिए काम नहीं किया, कोई भी पैसे के लिए हम्म काम नहीं किया। सबने, तो अगर उनका जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है लिटरेचर, उसका अगर हम कीमत लगाएं हम्म तो उसका कोई कीमत ही नहीं है, प्राइसलेस है। और उन्हें हम्म मुफ्त में दे दिया सबको ज्ञानवर्धन के लिए। हम्म। तो ये हमारा एक सिस्टम है जिसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन अभी कलयुग में हम लोग रह रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग सिस्टम में रहकर उसको सही करने की आवश्यकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मिश्रा जी, डॉक्टर मिश्रा जी, और हम लोग बाकी सेशन शेड्यूल करेंगे। नमस्ते और टू ये ऑल। एक दिन सर इस पर भी एक टॉक हम लोग रख सकते हैं कि इसका जो क्रोनोलॉजी ऑफ काम शास्त्रा, इस पर एक टॉक भी रखा जा सकता बिल्कुल है, या फिर बिल्कुल बिल्कुल। इसके विल डू दैट। आध्यात्मिक पक्ष पर, जैसा कि आपने बार बार बोला, आध्यात्मिक पक्ष पर भी इसका प्रॉपर एक रखा जा सकता है। हाँ, तो नेक्स्ट शो अलग हम लोग अलग फिर क्रोनोलॉजी ग्रंथ पे, का नेक्स्ट शो प्रॉपर। क्रोनोलॉजी पे हम लोग बात करते हैं, है ना। So thank जी you viewers for watching, and do watch it on YouTube and share with your viewers. Okay, namaste.